Welcome you students. In today's class, we are going to learn about Jenner diet. At the end of the class, you will be able to understand what is Jenner diet, working principle of Jenner diet, and VI characteristics of Jenner diet and its application. So let's start from what is Jenner diet. Diet that I have discussed in last lecture in PN junction diet. So let's start Jenner diet, a diet which is heavily doped and which operates in the reverse breakdown region with a sharp breakdown voltage is called a Jenner diet. Means Jenner diet is heavily doped, means in Jenner diet impurities doping is more and which operate in the reverse bias condition. Or basically a Jenner diet is basically like an ordinary PN junction diet but normally operated in reverse bias condition. But ordinary PN junction diet connected in reverse bias condition is not used as Jenner diet practically. A Jenner diet is a specially designed, highly doped PN junction diet. Jenner diet basically like an ordinary PN junction diet. मतलब क्या है ना, हम लोगों का जेनर डाइट है पीएन ऑर्डिनरी जो पीएन जंक्शन डाइट है उसी तरह होता है. पर ये क्या होता है, हम लोग का पीएन जंक्शन डाइट में फॉरवर्ड बायस में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलता है, बट रिवर्स बायस में क्या होता है, हम लोग को नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है. तो ये हम लोग का जेनर डाइट जो है रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा और क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जेनर डाइट इज़ ए स्पेशली डिज़ाइन हाईली डोप पीएन जंक्शन डाइट. इसमें हम लोग डोपिंग जो होगा मोर अमाउंट ऑफ डोपिंग और इम्प्योरिटीज होगा. दिस इज द डायग्राम ऑफ और सिंबल ऑफ जेनर डाइट. This is the positive terminal called as anode and this is the negative terminal called as cathode. और ये क्या है, हम लोगों का Z के तरह सिंबल है. तो ये हो गया हम लोग का जेनर डाइट सिंबल. दिस इज सिमिलर टू नॉर्मल डाइट एक्सेप्ट दैट द लाइन बार दिस वन. नॉर्मल डाइट में हम लोग का क्या होता था, ये स्ट्रेट लाइन बार होता था, बट यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये Z के फॉर्म में है. तो ये हो जाएगा जेनर डाइट. रिप्रेजेंटिंग द कैथोड इज बैंड एट बोथ साइड एंड ये बैंड है ना हम लोगों का दोनों साइड लाइक द लेटर Z. Z की तरह है. तो ये हो गया हम लोग का जेनर डाइट का सिंबल. नाउ working principle of Jenner diet. Before going to working principle of Jenner diet, let's recall the working of PN junction diet in reverse bias. This is the PN junction diet in reverse bias condition. P is connected to the negative terminal of the battery and N is connected to the positive terminal of the battery. Then it establishes a forward bias condition. In P region, majority is whole and in N region, majority is electron and depletion layer is wider. When a PN junction diode is reverse biased, the depletion layer becomes wider. If this reverse bias voltage across the diode is increased continuously, the depletion layer become more and more wider.
At the same time, there will be a constant reverse saturation current due to minority charge carrier. In previous class, we have already discussed the working principle of p-n junction diode in reverse bias. रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, हम लोगों का डिप्लीशन लेयर वाइडर होता है. ये तो यहाँ P में हम लोग का मेजॉरिटी क्या है, होल्स है. N में माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये डिप्लेशन लेयर का डिस्टेंस क्या है, D है. तो हम लोगों का अगर डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है. तो V इक्वल टू E D और E इक्वल टू V बाई D. तो अगर डिप्लेशन लेयर ज़्यादा है, वाइडर है, तो हम लोग का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट होगा क्या होगा, वो कम होगा. तो हम लोग इसको क्या होता है, एक्सटर्नल जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या हुआ, हम लोगों का करंट फ्लो नहीं किया. फिर से ज़्यादा अगर सपोज़ हम लोग 2 वोल्ट दिए, फिर 3 वोल्ट किए, तो अब सब तो क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा. अगर सपोज़ हम लोग क्या किए ना, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एज्यूम किए हैं. सिलिकॉन का हम लोगों का पोटेंशियल बैरिक कितना हो जाता है, 0.6 से ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 0.7 होता है वोल्ट. तो हम लोग अगर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 0.7 से ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम क्या होगा, इसमें जो पी टाइप में माइनॉरिटीज़ होगा, माइनॉरिटीज़ क्या होगा, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल इस रीजन में आ जाता है, डिप्लीशन रीजन में, और इसके पास क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सपोज सिलिकॉन और डोपेंट, तो उसका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा सिलिकॉन का, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा ना, कोवैलेंट बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा. तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा इस फॉर्म में होगा, तो उसको ब्रेक कर देगा, तो वहाँ से फिर हम लोगों का कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा. सपोज एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का पी रीजन से आया, जो कि माइनॉरिटी का कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो हम लोगों को और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया. उसी तरह 1 से 2 हो गया, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ब्रेक करेगा. तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा. मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो फिर क्या होगा, हम लोग का चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, हम लोगों का करंट फ्लो करेगा. तो यहाँ पे जबकि हम लोग का यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो डिप्लीशन रीजन में आया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, तो उस वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा, हम लोगों का कोलाइड्स हो रहा. तो ये कोलाइड्स होने के चलते क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, उसके आउटर मोस्ट सेल में हम लोग का कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया नेबरिंग के साथ, तो यहाँ से उसको वो क्या किया, ब्रेक किया और कोलाइड किया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का फ्री हो गया. तो ये कोलिजन के चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा. तो वो अगर ज़्यादा हम लोग जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा हम लोग का हीट जनरेट होगा. तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाएगा. तो इसी वजह से हम लोग क्या हुआ, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलेंगे. सो बेसिकली आफ्टर सर्टन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, the minority charge carrier gets sufficient kinetic energy due to strong electric field. Free electron with sufficient kinetic energy collides with the stationary ions of the depletion layer and knock out the more free electron.
and this newly created free electron also gets sufficient kinetic energy due to the same electric field and they create more free electron by collision. तो कॉलिजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा, तो ज़्यादा हीट जनरेट होने से क्या होगा, पी-एन जंक्शन डायोड जो है ये हम लोग का डैमेज्ड हो जाएगा. So this type of breakdown of the depletion layer is known as avalanche breakdown. But this breakdown is quite sharp. तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो जाएगा, जब हम लोग क्या कर रहे थे, वोल्टेज दिए, वो क्या हुआ, करंट नहीं फ्लो किया, फिर जैसे इंक्रीज किए नहीं किया, तो क्या हुआ, सर्टन टाइम में जब ज़्यादा हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तो P में जो माइनॉरिटी था इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला जाएगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वो चला जाएगा हम लोग का डिप्लीशन लेयर में. तो डिप्लीशन लेयर में क्या करेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो वहाँ से हम लोग का अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, फिर वो दूसरे करेगा कोवैलेंट बॉन्ड को कोलाइड होके, तो और हम लोग का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ज़्यादा हो गया. तो ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स भी है तो होल्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो जब तो यहाँ पे हम लोग का चार्ज कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा. तो एक टाइम हुआ जहाँ पे हम लोग वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज किए, ज़्यादा से ज़्यादा दिए, तो वो क्या हुआ, सडनली हम लोगों का करंट फ्लो किया. तो ये ब्रेकडाउन रीजन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एवैलेंच ब्रेकडाउन. तो ये हम लोग का हो गया एवैलेंच ब्रेक डाउन. तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनर इफेक्ट बोलेंगे. द रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ ए जेनर डायोड में ऑकर आइदर ड्यू टू जेनर इफेक्ट और एवैलेंच इफेक्ट, बट जेनर डायोड इज प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन जेनर इफेक्ट फॉर इट्स वर्किंग. तो हम लोगों का क्या होगा, जो जेनर डायोड में ऑकर ड्यू टू दी जेनर इफेक्ट और एवैलेंच इफेक्ट. तो हम लोग अभी कौन सा डिस्कस किए, एवैलेंच इफेक्ट डिस्कस किए, जिसमें हम लोग का क्या हो रहा था, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा था, इसमें हम लोग का इम्प्योरिटीज़ क्या था, ज़्यादा नहीं था. तो अब यहाँ पे कंडीशन दूसरा राइज होता है, जब यह हम लोग का पी-एन जंक्शन क्या हो रहा था, इसमें हम लोगों का जल जा रहा था, डैमेज हो जा रहा था ड्यू टू द कॉलिजन. तो कॉलिजन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट होगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी-एन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करेंगे ना, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा देंगे. तो अगर हम लोग इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा देंगे तो हम लोगों का डिप्लीशन क्या लेयर क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा. कैसे, सी थ्रू द डायग्राम. यहाँ पे मैं पी-एन जंक्शन डायोड का डायग्राम कर रही हूँ. ये क्या हो गया हम लोग का पी-एन जंक्शन, दिस वन इज द P region, this one is the N region. Reverse bias है, P is connected with the negative terminal of the battery and N is connected with the positive terminal of the battery. तो इसमें हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इसमें हाईली डोपिंग कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं. इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ. व्हेन ए पी-एन जंक्शन इज हाईली डोप्ड, the concentration of impurities atom will be high in the crystal. This higher concentration of impurity atom causes the higher concentration of ion in the depletion layer. Hence, for same applied reverse bias voltage, the width of the depletion layer become thinner than that in normal doped diode. तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग पी-एन जंक्शन हेवीली डोप्ड है, मतलब इसमें हम लोग जो डोपिंग करेंगे ज़्यादा अमाउंट में करेंगे. तो अगर डोपिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर हम लोगों का
क्या होगा, थिनर होगा, शॉर्टर होगा। कैसे, सपोज हम लोग यहाँ पे हम लोगों का होल्स था, तो इम्प्योरिटीज इसमें हम लोग किए, डोपिंग किए, तो इसमें क्या होगा, पोलैरिटी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो ये क्या होगा, हम लोगों का जो ये डिप्लीशन लेयर है वो हम लोग का कम होगा। इधर से क्या होगा, डोपिंग इम्प्योरिटीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डिप्लीशन लेयर कंप्रेस हो जाएगा, तो इस वजह से वो थिनर हो जाएगा और शॉर्टर। तो इसमें क्या हम लोग कम वोल्टेज ही देंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर में आ जाएगा, डिप्लेशन रीजन में आ गया। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का डिप्लेशन लेयर, तो डिस्टेंस हम लोग का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा ना, V = ED। तो डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे क्या है, डिप्लेशन लेयर बहुत थिनर है, तो यहाँ पे कॉलिजन का चांसेस कम हो जाएगा। तो अगर कॉलिजन नहीं होगा तो फिर हम लोग का दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कैसे करेगा, तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर हम लोग का करंट ज़्यादा से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का डिप्लेशन लेयर थिनर है, इस वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आया है हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रिक चलते क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, जो यहाँ पे सिलिकॉन एटम होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ब्रेक कर जाएगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा, तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे कॉलिजन नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग का क्या होगा, हीट जनरेट नहीं होगा। तो हीट जनरेट नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड, डोपिंग ज़्यादा किए इम्प्योरिटीज़ का, तो हम लोगों का यहाँ पे डिप्लीशन लेयर थिनर हो गया। तो थिनर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा के चलते क्या होगा, यहाँ जो हम लोग का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन आया है, तो उस वजह से कोवैलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। So when the electrical field across the junction is high due to the applied voltage, the Zener breakdown occurs because of breaking of covalent bond and produces a large number of electrons and holes. तो क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज दिए, थोड़े अमाउंट में ही दिए, तो क्या हुआ हम लोगों का ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो डिप्लीशन रीजन में आ गया। तो वो क्या करेगा, हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों का ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहाँ पे हम लोगों का होल्स भी होगा, तो जो कि क्या करेगा, विच कंस्टिट्यूट ए रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IZ से। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनर इफेक्ट बोलेंगे। तो इसका हम लोग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो जाएगा, हम लोग क्या वो इनिशियली करंट नहीं फ्लो किया, जब थोड़ा सा हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तो हम लोगों का क्या हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्रेशन रीजन में गया एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो होल्स भी होगा, तो हम लोग का करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे से हम लोग थोड़ा सा वोल्टेज दिए हैं, तो यहाँ इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन रीजन बोलेंगे। ये हम लोग का हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, उसके बाद हम लोग को करंट बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो हम जहाँ थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट हम लोग का बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस रीज़न को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनर वोल्टेज। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है किसका है, वो जेनर का है। तो ये हो गया हम लोग का जेनर वोल्टेज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी, जेनर नी, जेनर नी। तो ये हो गया हम लोग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
Zener diode. Now what are the application of Zener diode? This is the description of Zener diode. When the diode is connected in forward bias, the diode act as normal diode. हम लोग का फॉरवर्ड बायड में क्या होगा, नॉर्मल जैसे हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता था वैसे ही होगा. बट व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज, ए शार्प ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस. Vz is the zener voltage. It is also known as knee voltage, because at this point current rapidly increases. Now what are the application of Zener diode? Zener diode are used as a voltage regulator. The diode delivers constant voltage level to the output from the applied source, whose voltage level might differ over a range. Zener diode is also used in shaping the circuit as peak limiter or clippers. And these are used as a fixed reference voltage in transistor bias, and they are used for meter protection against the damage from accidental application of excessive voltage, जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं. कॉलिजन के चलते हीट जनरेट हो रहा था और हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड क्या हो रहा था, डैमेज हो जा रहा था. तो हम लोग का जेनर डायोड वहाँ पे क्या किए, हम लोग स्पेशली डिज़ाइन किए, जो कि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हुआ तो हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला. तो हम लोग का उस होल्स भी ज़्यादा मिलेगा, जो कि फिर कंस्टिट्यूट करेगा करंट. तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम लोगों का क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड डैमेज नहीं होगा. सो दीज आर द एप्लीकेशन. थैंक यू.